قانون کا خوف ہے نہ ہی آخرت کی فکر۔ فیصل آباد میں جعلی مقدمات کا اندراج تشویشناک حد تک بڑھ گیا۔ رواں سال کے دوران مختلف تھانوں میں 774 بوگس مقدمات رپورٹ ہوئے، تفتیشی عمل کے بعد خارج کر دیے گئے۔ جھوٹی FIR کٹوانے والوں کے خلاف کارروائی صفر۔ فیصل آباد میں جھوٹے مقدمات درج کروانے کا رجحان خطرناک حد تک بڑھنے لگا۔ فیصل آباد میں رواں سال کے دوران مجموعی طور پر 17,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے۔ تفتیش کے دوران مختلف جرائم کے 778 مقدمات بوگس نکلے۔ مختلف تھانوں میں جھوٹے مقدمات کو گزشتہ روز خارج کر دیا گیا۔ جھوٹا پرچہ کٹوانے والوں کے خلاف کارروائی صفر ہے۔ مدینہ ڈویژن میں سب سے زیادہ 248 بوگس مقدمات درج کروائے گئے۔ لال پور 138 اور اقبال ڈویژن میں 130 جعلی مقدمات رپورٹ ہوئے۔ جڑوالا 121 اور صدر ڈویژن میں 91 بوگس مقدمات سامنے آئے۔ جعلی مقدمات درج کروانے والوں کے خلاف تاحال کوئی کارروائی بھی نہیں کی گئی۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ پولیس پر منشیات فروشی کے بوگس پرچے درج اور مبینہ رشوت کے عوض خارج کرنے کا الزام۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی ارکان اسمبلی پھٹ پڑے۔ لیگی MP میاں طاہر جمیل نے فیصل آباد میں منشیات فروشی کے 167 مبینہ بوگس مقدمات کی نشاندہی کی۔ میاں طاہر جمیل کہتے ہیں کہ پیسے لے کر منشیات فروشی کے پرچے خارج کرتی ہے۔ پولیس منشیات فروشی کے پرچے پیسے لے کر خارج کر دیتی ہے۔ لیگی MP رانا احمد شہریار نے معاملے کی انکوائری کا مطالبہ کیا۔ CPO SSPR IB SSP انویسٹیگیشن سمیت اعلیٰ پولیس افسران اسمبلی میں پیش۔ اسپیکر نے الزامات کی تحقیقات کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کو 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پولیس پر منشیات فروشی کے بوگس پرچے درج کرنے کا الزام۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی ارکان اسمبلی پھٹ پڑے۔ میاں طاہر جمیل کی فیصل آباد میں 167 بوگس مقدمات کی نشاندہی۔ پولیس منشیات فروشی کے پرچے پیسے لے کر خارج کر دیتی ہے۔ رانا احمد شہریار نے معاملے کی انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ CPO SSPR IB سمیت اعلیٰ پولیس افسران اسمبلی میں پیش۔ SSP ریجنل انویسٹیگیشن برانچ SSP لال پور ٹاؤن بھی پیش۔ الزامات کی تحقیقات۔ وزیر قانون کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اسپیکر کا تحقیقات کر کے 15 دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں جھمرا روڈ ٹینکی والی گراؤنڈ کے قریب خوفناک آتشزدگی۔ شعلے دیکھتے ہی دیکھتے ملحقہ گلی تک پھیل گئے۔ قریبی گھر کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پایا اور مکینوں کو بحفاظت نکالا۔ ریسکیو حکام کہتے ہیں حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فیصل آباد کے علاقے جمرہ روڈ 202 ریبے گٹی میں ٹینکی والی گراؤنڈ کے قریب بڑی پلاسٹک پیلٹس میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ قریبی گلی تک پھیل گئی، جبکہ شعلوں نے آس پاس موجود گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیم کی جانب سے بروقت کارروائی کی گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق آتش زدگی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ وابڈا لائن کی تاروں میں سپارکنگ کے باعث آگ بھڑک اٹھی، جس نے قریبی گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ علاقہ مکینوں نے فوری ریسکیو 1122 کو کال کی، جس کی بروقت کارروائی پر قریبی گھروں سے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ الیکٹرک سپلائی کی وجہ سے یہ آگ پکڑی ہے۔ کچھ ادھر لوگوں کا بالن پڑا تھا، خشک لکڑیاں پڑی ہوئی تھی اور کچھ پلاسٹک پڑا ہوا تھا۔ وہ الیکٹرک سپارک کی تاریں جو آپس میں جڑی اور یہ آگ پکڑ لی، اور ٹائم پہ ہی ریسکیو آئی 1122 آ گئی، ٹائم پہ پولیس آ گئی، محلے داروں نے اور ریسکیو 112 نے مل کر موقع پر آگ کا قابو پا لیا۔ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ جانی نقصان بھی نہیں ہوا۔ موقع پر موجود مکینوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے بروقت گھر سے مکینوں کو ریسکیو کیا۔ اسی اثناء میں ریسکیو کی گاڑیوں نے بھی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں مالی نقصان تو ہوا مگر کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اوپر سے نا جو الیکٹرک سپلائی گزر رہی ہے وہ سپارک ہوئی، اس کی وجہ سے آگ پکڑ لی۔ گرمی بہت زیادہ تھی، جب تک ہمیں پتہ لگا ہم نے فائر بریگیڈ کو فون کیا، آتے آتے زیادہ آگ پکڑ لی۔ وابڈا لائن میں سپارکنگ کے باعث پلاسٹک پیلٹس کو لگی آگ نے قریبی گھروں کو لپیٹ میں لے لیا، مگر مکینوں اور ریسکیو ٹیم کی بروقت کارروائی نے نہ صرف شعلوں پر قابو پایا بلکہ جانی نقصان سے بھی بچا لیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فصیح نقوی کے ساتھ عمر انجا، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیول بحران اور لوڈ شیڈنگ کے بعد صنعت کاروں کو نئی مشکلات نے گھیر لیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے ریفنڈز کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ FBR نے DLTL کی مد میں ریفنڈز بحال نہ کیے۔ صنعت کاروں کے اربوں روپے FBR کے پاس پھنس کر رہ گئے۔ ٹیکس گزار کہتے ہیں کہ بروقت ریفنڈ نہ ملنے سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایکسپورٹرز کا FBR سے فوری ادائیگی کرنے کا مطالبہ۔
फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर के सनतकारों को नई मुश्किलात ने घेर लिया। DLTL रिफंड्स का मसला ताहाल हल न हो सका। FBR ने DLTL कीमत में रिफंड्स बहाल न किए सनतकारों के अरबों रुपए FBR के पास फंस कर रह गए। टैक्सदारों का कहना था लंबे अरसे से बरामद कुनंदगान के रिफंड्स रुके हुए हैं। बर वक्त रिफंड्स न मिलने से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बरामदी शोबा आलमी सूरत हाल के बाइस पहले ही जवाल का शिकार है। सनतकारों का मुतालबा है कि FBR हुक्काम मामले का नोटिस देकर DLTL की अदायगियां करवाएं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली बिलों में 2500 रुपए फी किलोवाट फिक्स चार्जेस की वसूली। फैसलाबाद के सनतकार शदीद मुश्किलात का शिकार, कारोबारी सरगर्मियों मुतासर होने का खदशा। ताजिर बरादरी ने फिक्स चार्जेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं महंगाई के दौर में फिक्स चार्जेस का इजाफी बोझ बर्दाश्त से बाहर है। बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस की वसूली पर फैसलाबाद का ताजर परेशान। साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि फी किलोवाट पर 2500 रुपए फिक्स चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों में फिक्स चार्जेस वसूल हो रहे हैं। फिक्स चार्जेस को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। फिक्स चार्जेस की वजह से ताजिर बरादरी को शदीद परेशानी का सामना है। मैंने अगर कोई एक यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने लिख दिया कि 5 किलोवाट है तो मुझे 12,000 जो है वो अदा करना ही पड़ेगा। ये तो शुक्र है कि सोलर ने हमें बचाया हुआ है, अदरवाइज तो ये हमें निचोड़ देते। ये गैर हकीकी, गैर मुनसिफाना जो चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस लगाए गए, इसे फिल फॉर वापस लेना चाहिए। ताजरों की जानिब से फिक्स चार्जेस को खत्म करने की अपील की जा रही है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग के अवाम डीजल की कीमतों में कमी के समरात से महरूम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए में कमी से इंकार। मंडियों में ज़रूरी अजनास और फलों की तरसील का बुहरान सर उठाने लगा। मुजफ्फरगढ़ से जंग का ट्रक किराया 28,000 रुपए पर बरकरार। सिंध से 3 लाख के तरबूज की तरसील पर ट्रांसपोर्ट खर्च 3.5 लाख तक पहुंच गया। अंजुमन आड़तियां शदीद परेशान, किरायों में कमी का मुतालिबा। गुड्स ट्रांसपोर्ट माफिया डीजल कीमतों में कमी से मिलने वाले रिलीफ के आड़े आ गया। जंग में गुड्स ट्रांसपोर्ट किरायों में कोई नुमाया कमी न आ सकी। महंगे किरायों के बायस ताजरों और आड़तियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मंडियों में फलों और सब्जियों की तरसील मुतासिर होने लगी। जंग में फलों और सब्जियों के नर्ख बढ़ने का खदशा। सेक्रेटरी जनरल अंजुमन आड़तियान गुड्डू खान का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ से जंग का एक ट्रक का किराया अब 28,000 रुपए वसूल किया जा रहा है। बाज़ औक़ात ट्रांसपोर्ट का खर्च माल की असल कीमत से भी बढ़ जाता है। सिंध से 3 लाख मालियत के तरबूज की तरसील पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा 3.5 लाख रुपए तक पहुँच गया। जंग के दौरान हुकूमत ने डीजल की कीमत में तकरीबन 184 रुपए का इजाफा किया। अब 2 हफ्तों, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टरों ने अपने किराए में भी होश रवा इजाफा कर दिया। अब हुकूमत ने 2 हफ्तों में मुस्तकिल 100 रुपये और 34 रुपए की रियायत दी है। इस तरह 134 रुपए की गवर्नमेंट ने रियायत दी है, लेकिन अभी तक ये रियायत आम आदमी तक नहीं पहुंची। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए उसी तरह अपनी जगह पर बरकरार है। सिंध से जो गाड़ी पहले 2 लाख में आती थी, उस किराए के डीजल में इजाफे के बाद वो गाड़ी का किराया 3.5 लाख रुपया हो जाएगा। अंजुम ने आड़तियान का सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहना था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट पर कोई मौसर चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं, जिससे ताजरों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। महंगाई के असरात से गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। फैसलाबाद की फैक्ट्रियों में वर्कर्स की तनख्वाहें 20-20 दिन ताखीर का शिकार। मजदूरों के घरों में फाकों ने डेरे डाल लिए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। मेहनत कश बोले पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी थी। तनख्वाहों में ताखीर से जिंदगी मजीद अजीरन हो गई है। महंगाई के बढ़ते हुए इस रात ने मेहनत कश तबके का जीना दूभर कर दिया। फैसलाबाद में फैक्ट्रियों से तनख्वाहें भी लेट होने लगी। मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना कड़ा इम्तिहान बन गया। लेबर लीडर असलम मिराज का कहना था कि हालात ये हो चुके हैं कि फैक्ट्रियों में 20-20 दिन के इंतजार के बाद तनख्वाह दी जा रही है। पहले ही गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मजदूर परेशान थे। रोजाना की बुनियाद पर लेबर डिपार्टमेंट में दरखास्तें जमा हो रही हैं। महंगाई जो है तकरीबन 200 गुना बढ़ी है। पेट्रोल की मसनूआत में भी जो है इस कदर इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा, जिसकी वजह से बसों के किरायों में, लोकल किरायों में और खाने पीने की तमाम अशिया में जो है 200 गुना तक इजाफा हुआ है। और उसके बाद जो है गरीब आदमी जो है जिसको 40,000 रुपए जिसकी तनख्वाह मुकर्रर की थी वो भी नहीं मिल रही। लेबर लीडर बाबा लतीफ अंसारी का कहना था ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमतें सब्सिडी दिया करती हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की ऐसी कोई तरजीह दिखाई नहीं दे रही। मजदूर आए रोज फाकों पर मजबूर हो रहे हैं। मजदूरों के घर जाकर तो देखें उनके बच्चे किस हाल में हैं। साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके बकाया जात जो बनते हैं
وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، جس کے لیے یہ بار بار لیبر ڈپارٹمنٹ کے چکر لگا رہے ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور باقی حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں اب وہ 3000 راشن کارڈ کے پیچھے تو لگا دیا، ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کو ان کا حق دیا جائے۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ غریب بندے کے مسائل حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41، فیصل آباد۔ حکومتی خزانے پر بوجھ سرکاری محکموں میں خالی سیٹوں کو ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کی سیٹیں شامل محکمہ کوپریٹو کی 1020، محکمہ جنگلات کی 753 پوسٹیں ختم کرنے کی منظوری، محکمہ ایجوکیشن کی 30,391، محکمہ انہار کی 1041 اور محکمہ زراعت کی 5,199 آسامیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ، اربن اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی 727 اور محکمہ کوپریٹو کی 1020 خالی آسامیاں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ سرکاری خزانے پر بوجھ محکموں میں خالی سیٹیں ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محکمہ کوآپریٹو کی 1020 خالی اسامیاں ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محکمہ جنگلات گریڈ 1 سے 16 کی 753 پوسٹیں ختم کرنے کی منظوری، محکمہ ایجوکیشن میں 30,391 خالی پوسٹیں ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ہارٹی کلچر ایجنسی کا نام بدلا مگر کام نہ بدل سکے۔ انتظامیہ کے عدم توجہ سے فیصل آباد کا نواز شریف پارک زبو حالی کا شکار، شہر کے پہلے ڈانسنگ فاؤنٹین نکارا پارک میں جا بجا کچرے کے ڈھیر سیاحوں کو منہ چڑھانے لگے، لاکھوں مالیت کے نصب شدہ مونومنٹ بھی غائب۔ ایم ڈی ہارٹی کلچر ایجنسی دلاور خان کا موقف دینے سے انکار، اسسٹنٹ کمشنر نے پارک کی جلد بحالی کی امید دلا دی۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا نام بدل کر ہارٹیکلچر ایجنسی رکھ دیا گیا، مگر عملے کا رویہ نہ بدلا جا سکا۔ پرانی سبزی منڈی کے مقام پر سال بھر پہلے بننے والا نواز شریف پارک زبو حالی کا شکار ہو گیا۔ شہر کے پہلے ڈانسنگ فاؤنٹین عدم توجہ کے باعث کچرا فاؤنٹین میں تبدیل، نواز شریف پارک میں لاکھوں مالیت کے لگائے گئے مونومنٹ بھی غائب ہو گئے۔ ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی دلاور خان نے نواز شریف پارک کی بگڑتی حالت پر موقف دینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کا کہنا تھا کہ شہر کے 355 پارکوں کی دیکھ بھال کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ MOU سائن کیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف پارک کو بھی جلد بحال کیا جائے گا۔ لاہور فیشن ایک کمپنی ہے، انہوں نے اس کا ذمہ لیا ہے، ہم اس کی ڈیزائننگ فیز میں ہیں۔ جب ہم ان کو ڈیزائن کر کے اس پہ پیسے بھی وہ خرچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو ریپیئر مینٹیننس ہے وہ بھی ہم ان کے ذمہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم ہیں اور ہماری کمپنی ہے ہم اس کو خود سے مینیج کریں گے۔ تو جو بڑے پارک ہیں ہارٹیکلچر ایجنسی اس کو دیکھ رہی ہے، اس طرح کے بعد کمیونٹی کو ہم انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس پارک کو آپ نے ہائی لائٹ کیا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی پریورٹی پہ ٹیک اپ کر لیں۔ شہریوں نے تفریح کے لیے بنائے گئے نواز شریف پارک سے کچرا اور ملبے کے ڈھیر ہٹا کر ڈانسنگ فاؤنٹین کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ وقاص احمد، بیگ سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن مسائل کے بھنور میں پھنس گیا، کہیں گرین بیلٹ تباہی کا شکار تو کہیں فٹ پاتھ ٹوٹ پھوٹ کی بھینٹ چڑھ گئے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ اور محلہ چار جہانگیری بنیادی سہولیات سے محروم، مکینوں کے لیے گزر بسر دشوار بن گیا۔ ٹوبہ میں الیکٹرک بسز کے سٹاپس پر گرمی کا راج، روڈ سلطان کے شہری مسافر خانے کی تعمیر کے منتظر، عوام کھلے آسمان تلے جھلسنے پر مجبور ہو گئے۔ گرین بیلٹس نشیوں کی عماج گاہ بننے لگے۔ شہر کے معروف ملت چوک کے تکونی پارک کی گرین بیلٹ پر نشیوں کے ڈیرے، گرین بیلٹ کی باؤنڈری ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جبکہ گھاس بھی ختم ہو چکی، جس کے نتیجے میں گرین بیلٹ کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ خدیجہ میموریل ہسپتال فیصل آباد سے ملحقہ گرین بیلٹ تباہی کا شکار ہیں۔ گرین بیلٹ سے گھاس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ گرین بیلٹ اور فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار، انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف، راہگیروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا، شہریوں کا انتظامیہ سے گرین بیلٹ واگزار کرانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں اکبر چوک سے ملحقہ فٹ پاتھ تباہی کا شکار، سلیبس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ غائب بھی ہونے لگی۔ گہرے نالے میں جا بجا گندگی، کوڑا کرکٹ اور ملبے کے ڈھیر موجود، علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے سلیبیں مکمل کرنے کا مطالبہ۔ سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ کے رہائشیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی، خستہ حال روڈ سے گزرنا شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ سڑک پر پڑے پتھر حادثات کا سبب بننے لگے۔ چنیوڑ کا محلہ چاہ جنگیری انتظامیہ کے عدم توجہ کا شکار، چاہ جنگیری بنیادی سہولیات سے محروم، پختہ گلیاں نہ، نکاسی آپ کا کوئی انتظام، اہل علاقہ کا گھروں سے نکلنا محال بن گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں صورتحال انتہائی ابتر ہے، اکثر بائک سوار پھسل کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب بارش آتی ہے تقریباً 1.5 فٹ پانی ہوتا ہے اور گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ مین چاہ جنگیری والا یہ ادھر سے جو ہے جنازے گاہ کی طرف سے مین روڈ آ رہا ہے، ٹرالیاں بھی گزرتی ہیں، یہ منڈی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا راستہ بنائیں، تو یہاں پہ کسی کی توجہ نہیں ہے۔
टोबा टैक्सी में इलेक्ट्रिक बसें अवाम के लिए बड़ी सहूलत, लेकिन गर्मी में इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहने लगा। मुसाफिरों ने जिले इंतजामिया से स्टॉप पर पंखे लगाने का मुतालिबा कर दिया। मैं इस वक्त गोजरा जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त गर्मी की शिद्दत की वजह से अवाम परेशान है और यहाँ पे अगर पंखों का इंतजाम हो जाए, वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर इसके साथ साथ रात को लाइट और दिन के टाइम अगर पंखों का अरेंज भी हो जाए तो ये बहुत ही आसान इकदाम होगा। तहसील 18 हजारी का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद इलाका रोड सुल्तान बुनियादी सहूलत से महरूम, जहां ताहाल मुसाफिर खाना तामीर नहीं किया जा सका। शदीद गर्मी के बावजूद मुसाफिर खुले आसमान तले गाड़ियों का इंतजार करने पर मजबूर हैं। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी की ज़ेर सदारत इजलास पार्किंग कंपनी, रेवेन्यू और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमूर ज़ेर बहस आए। कमिश्नर की पार्किंग के निज़ाम को जिद्दत से हमकनार करने की हिदायत, कहा पार्किंग कंपनी का मेयार अवामी तवक्कुआत से बढ़कर होना चाहिए, शफाफियत को हर कीमत पर मलहूज़े खातिर रखा जाए। फैसलाबाद को मजीद महफूज बनाने का फैसला, 8 बाजारों में जदीद बरकी सिस्टम बिछाने का मंसूबा तैयार, मंसूबे के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। जिला कौंसिल चौक फैसलाबाद तक कचहरी बाजार तक सड़क की बहाली का फैसला, MFC को जिम्मेदारी तफवीज कर दी गई है। टोबा के सदर बाजार का नक्शा तब्दील होने लगा, जहां एक ही डिजाइन के शेड्स लगा दिए गए। घर के 8 बाजारों में जदीद बरकी सिस्टम बिछाने का मंसूबा, कचहरी बाजार के बाद झंग बाजार में भी जेर जमीन बरकी निज़ाम बिछाने का प्लान तैयार। फैसको ने झंग बाजार में 8 रोज के दौरान काम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। मंसूबे पर 8 रोज में अमली काम का आगाज मुतवक्के। झंग बाजार में बिजली के तार जेर जमीन मुंतकिल किए जाएंगे। मंसूबे के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस। जिला काउंसिल चौक फैसलाबाद तक कचहरी बाजार तक सड़की बहाली का फैसला, मंसूबे के लिए 4 करोड़ 68 लाख के फंड मंजूर। तरक्याती सूबों के तहत दोनों इतराफ से सड़क की बहाली का जिम्मा MCF के सुपुर्द। MCF ने सड़क की बहाली के लिए टेंडर तलब कर लिए। टोबा टैक्सिंग के सदर बाजार का नक्शा तब्दील होने लगा। शहर के मसरूफ तरीन बाजार में एक ही डिजाइन के शेड लगा दिए गए। चौराहों की तमीर का आगाज, जेर जमीन बिजली और टेलीफोन की तारें बिछाने का काम मुकम्मल। टोबा में जिले इंतजामिया की निगरानी में बाजार की तजीनो आराइश का काम जारी। इंतजामिया का कहना था सदर बाजार में अंडरग्राउंड वापटा वायरिंग का काम मुकम्मल हो गया। शहरियों को साफ महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत पंजाब की तरजीह है। शहरी सहूलियात और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए जाएंगे। मानसून की आमद है। वासा जंग ने पेशी इक़दामात का आगाज कर दिया। शहर के बेशतर डिस्पोजल स्टेशन जदीद स्कॉडर सिस्टम पर मुंतकिल। नए सिस्टम के जरिए तमाम डिस्पोजल स्टेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। मानसून की आमद वासा झंग ने पेशगी इकदामात करना शुरू कर दिए। सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी का जदीद सिस्टम फाल। डिस्पोजल स्टेशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्काडा सिस्टम नस्ब। MD वासा सैयद सौलत रजा का कहना था कि शहर के बेशतर डिस्पोजल स्टेशंस को मॉनिटरिंग के जदीद निजाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। नए सिस्टम से मालूम किया जा सकेगा कि स्टेशन में कितना पानी मौजूद और कितना खारिज किया जा रहा है। वासा झंग इंतजामिया और DG वासा लाहौर में पूरे सिस्टम की निगरानी कर सकेंगे। जी, जैसे आपने कहा है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, तमाम कंट्रोल होगा वो एक कंट्रोलिंग यूनिट पे सेंट्रल कंट्रोल रूम में होगा। वहीं से मॉनिटर ये जो मोटर्स होंगी ऑपरेट होंगी। ह्यूमन रिसोर्स पे हमारा जो इन्हिसार है वो कम हो जाएगा और इसकी तमाम हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकेंगे। ऑलमोस्ट हमारे तमाम जो डिस्पोजल वर्क्स थे उन पे ये सिस्टम लग गया है, अंडर टेस्ट एंड ट्रायल है। पंजाब वासा इसको मॉनिटर कर रही है और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें हैंड ओवर कर देंगे। MD वासा सैयद सौलत रजा का मजीद कहना था कि तमाम स्टेशंस पर नस्ब पंप्स के चलने और बंद होने के औकात की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। शहर शहर करिया करिया, पंजाब हुकूमत का सफाई मिशन कामयाबी से जारी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम फैसलाबाद ने कारकर्दगी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। टीचिंग हस्पतालों को भी सुथरा प्रोग्राम के हवाले करने का फैसला। तिब्बी मराकज की सफाई का निजाम जल्द सुथरा पंजाब प्रोग्राम का अमला देखेगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मातहत हस्पतालों से तफसीलात तलब कर ली। पंजाब हुकूमत का सरकारी हस्पताल चमकाने के लिए बड़ा इकदाम। टीचिंग हस्पताल सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने हस्पतालों से तफसीलात तलब कर ली। मेडिकल सुपरिटेंडेंट FIC डॉक्टर राना नदीम का कहना था कि मुतल्लिका महकमे को वार्ड्स, वॉशरूम्स और रकबे से मुतल्लिक डाटा फराहम कर दिया है। फराहम करदा तफसीलात में अमले की डिमांड भी शामिल है। अब अपना गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है कि हॉस्पिटल की जो क्लीननेस है वो अवलिन तरजीह है कि वो सफाई सुथराई जो है हॉस्पिटल
हॉस्पिटल की वो अपना होनी चाहिए। तो इस हवाले से डिपार्टमेंट ने हमें जो डिटेल हमारी जो है अपना कि कितने वॉशरूम्स हैं, कितने हमारे जेनिटोरियल रिक्वायर्ड है, कितना जो है उसमें जो सामान है वो रिक्वायर्ड होगा, तो उसकी डिटेल जो है हमने वो बना के भेजी है। MSFIC डॉक्टर राना नदीम का कहना था कि सुथरा पंजाब को अस्पतालों की सफाई का निजाम मिलने से सफाई सुथराई का निजाम बेहतर होगा। अस्पतालों में सुथरा पंजाब का अमला तीनों शिफ्टों में काम करेगा। सुथरा पंजाब के तहत जो ऑलरेडी जो है सफाई सुथराई का काम चल रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बेहतरीन आसान तरीके से चल रहा है, तो अगर उधर से भी हमें जो जेनिटर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली जो है हॉस्पिटल की जो क्लीननेस में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। टीचिंग अस्पतालों में सफाई सुथराई का निजाम प्राइवेट अफराद ठेके के जरिए चला रहे हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान कैदियों को सजा काटने के साथ साथ इलाज मुआवजे में भी मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की शदीद कमी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मामले का नोटिस ले लिया। अस्पताल में तिब्बी अमले की कमी दूर करने और अद्वियात की फराहमी का हुक्म दे दिया। सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की कमी। अस्पतालों में कैदियों के इलाज मुआवजा के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ एंड पॉपुलेशन को मरासला जारी। मरासले में मजीद कहा गया है कि सेंट्रल जेल के अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। अद्वियात समेत दीगर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इन इकदाम का मकसद कैदियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराहम करना है। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल की निशानदही पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से खत लिखा गया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। नाजरीन, आपको बताएं कि भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश दूसरे साल में दाखिल हो गई है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 24 मई तक मजीद तोसी कर दी गई है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय मुसाफिर तैयारों और फौजी प्रवासों के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 मई 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। आपको बताएं कि डायरेक्टर FIU फैसलाबाद सिकंदर हयात शहरियों की दाद रसी के लिए पेश सर्कल ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मुतासरीन की बड़ी तादाद शिकायत लेकर पहुंच गई। वीजा फ्रॉड से मुतालिक सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। डायरेक्टर सिकंदर हयात ने मसाइल हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। डायरेक्टर FIU फैसलाबाद जोन मलिक सिकंदर हयात की जानिब से खुली कचहरी। शहरियों की दाद रसी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद सर्कल ऑफिस में किया गया। डिप्टी डायरेक्टर तारिक महमूद और SHO अजमल हुसैन भी मौजूद थे। शहरियों की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में मसाइल बताए। डायरेक्टर सिकंदर हयात ने मसाइल हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। मलिक सिकंदर हयात का कहना था कि शहरी वीजा लेने से कबल एजेंट का लाइसेंस जरूर चेक करें। 10-20% में कोई शक की बात हो, बहरहाल ये मेरिट पे इंशाल्लाह मेरिट पे करें भाई, लेकिन आप भी अपना फर्ज अदा करें, बच्चों के ऊपर नजर रखें किधर वो जा रहे हैं, उनकी किस किस्म की एक्टिविटी है। खुली कचहरी में वीजा फ्रॉड से मुतालिक सबसे ज्यादा दरखास्तें मसूल हुई। कैमरामैन राना दरीज के साथ ये मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। तालीम के फरोग के लिए सरकारी और निजी तालीमी इदारे पेश कॉमर्स कॉलेज शोबा में IT कोर्स के इजरा। चिन्योट में 29 असातिज़ा की प्रमोशन होगी। महकमा तालीम फैसलाबाद 1 लाख नए बच्चे स्कूल्स में दाखिल कराने के लिए मुतहरिक। स्कूल्स की छुट्टी के वक्त तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज चिन्योट में प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का ऐलान हो गया। टैक्सिंग का तारीखी इकदाम, पहली बार IT कोर्स की इजरा का फैसला। बाकायदा नया IT डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया है। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और बेहतर रोजगार के मौके फराहम। प्रिंसिपल का कहना था कि IT कोर्स से तलबा के लिए बेहतरीन रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चिन्योट PST CEST डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के मिनट्स जारी। जिला के 67 असातिज़ा में से सिर्फ 29 असातिज़ा की PST CEST प्रमोशन होगी। चिन्योट के 37 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की EST प्रमोशन ना हो सकी। 37 केसेस कागजात ना होने और मतलूबा तालीम ना होने समेत दिगर वजूहात की बिना पर महकमाना तरक्की से रह गए हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद स्कूल्स में 1 लाख नए बच्चे दाखिल करने के लिए पुरअज़्म CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम कहते हैं कि सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम जारी है, जबकि दाखिला टारगेट 2 फेज में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फेज में 31 मई तक दाखिला मुहिम जारी रहेगी। चिन्योट पंजाब हुकूमत महकमा तालीम अफसरान के अहकामात पर अमल दरामद के लिए DEO एलिमेंट्री मोहम्मद इस्माइल साकी की सदारत AEOs इजलास। चिन्योट मुख्तलिफ मराकज के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की शिरकत। DEO एलिमेंट्री मोहम्मद इस्माइल साकी ने कहा कि स्कूल इनरोलमेंट, असातिज़ा और तलबा की ऑनलाइन हाजिरी पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स अमल दरामद करवाए। खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई होगी।
स्कूल्स की छुट्टी के वक्त तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिदायत। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल सरबराहान को मरासला जारी कर दिया। स्कूल मुकम्मल तौर पर खाली होने तक सरबराहान और असातिज़ा स्कूल में रुकने के पाबंद। छुट्टी के वक्त स्कूल्स की तमाम हिस्सों की मुकम्मल चेकिंग की हिदायत। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज चनियोट ने मैट्रिक इम्तिहानात से फारिग तलबा के लिए प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का ऐलान कर दिया। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक क्लासेस का आगाज 27 अप्रैल 2026 से होगा। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, FA और IT समेत दिगर मसाबीन में रजिस्ट्रेशन जारी है। जर्मन सफ़ीर के हवाले से बताएं कि जर्मन सफ़ीर की फैसलाबाद ईमान सनत व तिजारत आमद चैम्बर सदर फारूक यूसुफ और सीनियर नायब सदर नवीद अकरम ने इस्तकबाल किया। ओहदेदारों से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। जर्मन सफ़ीर का वुमेन चैम्बर का भी विजिट। कारोबारी खातीन से मिली जर्मन सफ़ीर कहती हैं पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ। की आमद के मौके पर मुनक्किद इजलास से खिताब करते हुए सदर ईवान सनत और तिजारत फरूक यूसुफ शेख का कहना था कि पाकिस्तान और जर्मनी के आपस में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। यूरोप में जर्मनी हमारा बड़ा पार्टनर है। GSP प्लस स्टेटस बहाल रखने में जर्मनी का अहम किरदार है। जर्मन सफीर एना लेपल ने खिताब करते हुए कहना था कि वो पहले भी पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। वक्त के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है। जानती हूँ शफाफियत और टैक्सेस के मसाइल हैं। बदकिस्मती से हालिया सालों में दो तरफा तजारत मुतासिर हुई है। अजलास के इख्तिताम पर सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख ने इजहार ख्याल किया। To visit FCC today have talking about the bilateral trade between Germany and Pakistan, and we all know already German support to Pakistan, and yesterday have a one contract signed with the local government for purify water. So thank you very much to Honorable and Excellency German Ambassador to be here in Faisalabad Chamber. Somebody should give us this. Just put it there and then it will all be fine. But nowadays it doesn't work like that anymore. It has to be self-sustainable, it has to have a sound financial basis, and it doesn't work like this anymore. Germany and Pakistan share strong relations, and today's visit will further strengthen our friendship and business ties. I am thankful all of audience today and especially guest of honor that she visited Faisalabad Chamber of Commerce today and this event successfully done. So thank you very much once again, and Pakistan Zindabad. वुमेन चैम्बर में जर्मन सफीर की आमद। कारोबारी खवातीन से जर्मन सफीर ने मुलाकात की। वुमेन चैम्बर सदर शाहिदा आफ्ताब और फाउंडर सदर रुबीना अमजद ने क़यादत की। रुबीना अमजद का कहना था कि आज की मीटिंग कारोबारी खवातीन के लिए फायदेमंद साबित होगी। जर्मन सफीर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। वुमेन चैम्बर ने हमेशा कारोबारी खवातीन के लिए नए नए मौके पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने हमें उनके कॉन्टैक्ट्स दे दिए हैं कि आप जिस चीज़ों में आपको ज़रूरत है। हमने उनको जर्मन लैंग्वेज के लिए दरख्वास्त की थी कि यहाँ पे शुरू करें, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने सॉरी किया है। और उसके बाद लेकिन उन्होंने अपना वहाँ बताया है सारा कि क्या क्या चीज़ों की डिमांड है, और हमने कहा कि ठीक है, उसके लिए पर हम वर्कआउट करते हैं। फैसलाबाद ईवान सनत और तजारत और वुमेन चैम्बर की जानिब से जर्मन सफीर को आजादी शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशें। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के साथ इजहारी शख्सियती रैली। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने पर सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। रैली ज़रिए यूनिवर्सिटी से जिला कौंसिल चौक तक निकाली गई। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद का कहना था कि सफारतकारी ने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है। सालसी से पाकिस्तान ने दुनिया को जंगों से बचा लिया है। हमने फैसलाबाद की तरफ से मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करने के लिए कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बनी है। MNA राजा दानियाल अहमद का कहना था कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतनी बेहतर लीडरशिप मिली है। क़यादत के इत्तफाक व इत्तेहाद से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती और ख़ास तौर पर पिछले 10-15 दिनों में जो उन्होंने एक तीसरी आलमी जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा किया है, फैसलाबाद की तरफ से, फैसलाबाद की वाम की तरफ से हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, और जो पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हुए हम उनको सलाम पेश करते हैं। लीगी रहनुमा उमर असरार खान का कहना था कि पाकिस्तान की कोशिशों ने दुनिया को एक बड़ी जंग के खतरे से महफूज बनाया है। फील्ड मार्शल साहब को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो आला सफारतकारी उन्होंने की है, हमने पाकिस्तानी तारीख में ऐसी नहीं देखी। और हरे पासपोर्ट की जो इज्जत आज
आज हो रही है, इस तरह हमने कभी पहले नहीं देखी। तो बहुत शुक्रिया फील्ड मार्शल, बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के नारे गूंजते रहे। रैली ज़रे यूनिवर्सिटी रोड से जिला कौंसिल चौक तक निकाली गई। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। इलामा इकबाल ने उम्मत मुसलमान को खुदी, बेदारी और अमल का पैगाम दिया। आज भी इसी पैगाम को अपनाने की अशद जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इकबाल की फिक्र का बुनियादी नुक्ता उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद था। इकबाल की शायरी महज अल्फाज नहीं बल्कि एक इनकलाबी पैगाम है जो उम्मत मुसलमान को झंझोड़ने और जगाने का जरिया बनी। इकबाल ने नौजवानों को शाहीन करार देकर उन्हें बुलंद परवाजी, खुदी और मुसलसल जदोजहद का दर्स दिया। वो मुसलमानों को रंग, नस्ल और जुबान से बालातर देखना चाहते थे। इलामा इकबाल के नजरियात की रोशनी में अमन, मसावात और इत्तेहाद की बुनियादों पर कायम पाकिस्तान ही हमारा मुस्तकबिल है। फैसलाबाद में पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इल्मी और फिक्री सेमिनार और महफिलें शामिल थी। सेमिनार का उन्वान था कि फ़िक्र इकबाल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम और उसके इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में तकाज़े, जिसमें माहिरीन तालीम, दानिश्वरों, अदीबों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाफ़र हसन मुबारक और प्रोफेसर अब्दुल वहीद निज़ामी ने शिरकत की।